video, we will do compound interest with formula. Then what is the formula? To find out amount, see, amount is equals to P. We will start the bracket. 1 plus R by 100. We will close the bracket and in the power we will write N, where A is amount, the final amount that we get at the end. P is principal, R is rate, and N is time. Using this formula, we will find out amount for the given question in which we will find the compound interest. After finding amount, we will find compound interest using the formula CI is equals to A minus P. A we will find using this formula, and P that will be given, we will subtract this and we will get compound interest. Now we will do one question. Basis on this formula we will solve. Suppose your question is that principal is 12,000 rupees. Okay, principal is 12,000 rupees. Time is 3 years, and your rate will be 10% per annum. Now you have to find amount using the formula. How you will find? We will find by using the formula P will be 12,000. Then bracket open, 1 plus R by 100 and N will be 3. After this we will solve. How we will solve? This is 12,000. Then we will take LCM of this. After taking up LCM, we will now solve this. Here this 2 0 and this 2 0 will get cancelled. This 0 will get cancelled. This 0 will cancel all the zeros. After cancelling all the zeros, we will multiply these numbers and we will get our amount. Okay? After multiplying these numbers, we will get our amount. We will then, after amount, we will take out compound interest. How we will take out compound interest? Amount minus principal. But before that, what will be the answer for amount? After calculation, the answer will be 15972. When we will multiply these numbers, we will get rupees 15,972. Then CI is equals to A minus P, which will be 12,000 minus, your amount will be 15,972 minus 12,000. We will subtract this number and we will get our compound interest. After subtracting, we will get rupees 3972, and this will be answered. So students, in this part of the compound interest, we have learned taking out amount using formula, and the formula is P. We will start the bracket 1 plus R by 100, and in the power we will write the time denoted as N. We will put the values and we will find out the answer. When we will get the amount, then we will subtract principal from amount to get the compound interest. Students, we will study about problems based on population. In compound interest, we also get some related to population. Let us do one question regarding this. You are having a question that population
then 4,55,625 and it is increasing 8% per year. So you have to find out population in 2013 also and 2017 also. First what we will do is we will find out the population in 2017. So we will put the same formula. How we will put? First we will write population in 2017. The same formula that we were using for compound interest for finding out the amount, we will put the same formula here. What we will do is we will first take this population number as P and then we will write 1 plus 8 by 100 and instead of n we will write 2015 से 2017 काउंट करने से हम लोग का कितना ईयर्स आएगा? 2 ईयर्स आएगा, इसीलिए हम लोग n की जगह में 2 लिखेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हमारा आपके पास ये एलसीएम लेने से 108 बाई 100 आएगा और इसको हम लोग को 2 बार लिखना है क्योंकि इसका पावर है 2। आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको कैलकुलेट करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 531,441। इसको जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर एज 5,31,441। देन योर पॉपुलेशन इन 2017 will be 5,31,441. Now what we have to find is the population at 2013. So what we will do is first of all we will take population in 2013 as x. This is clear. After this we will write let population in 2013 be x. Okay, let population in 2013 be x. When we take this as x, how we will form the equation? Like 13 से 15 आपका 2 साल का डिफरेंस है, तो what we will do is we will take this as amount. अब हम लोग इसको अमाउंट के तौर पे लेंगे क्योंकि हम लोग को फ्यूचर का दिया हुआ है और अमाउंट फ्यूचर का ही डेटा होता है, तो हम लोग को फ्यूचर का 2015 का दिया हुआ है तो हम लोग उसको एज अमाउंट ले लेंगे और p की जगह में x लेंगे, फिर 1 प्लस 8 बाई 100 और 2013, 2014, 2015 डिफरेंस इज 2, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। देन वी विल सॉल्व दिस like we solve a linear equation. In the same way we will solve this. See, this is the equation that is formed according to the question. That is, आपका ये जो नंबर है जो 2015 में पॉपुलेशन था वो हमारा अमाउंट हो जाएगा जब हम लोग 2013 का पॉपुलेशन निकालेंगे, बिकॉज आपको जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो अमाउंट होता है वो फ्यूचर का अमाउंट होता है, मतलब फ्यूचर में पैसा कितना हो जाएगा। सेम चीज़ आपको फ्यूचर का पॉपुलेशन दिया हुआ है और आपको प्रेजेंट मतलब 2013 का पॉपुलेशन निकालना है, तो इसीलिए हम लोग अमाउंट में 2015 का पॉपुलेशन लिखे हैं और 2013 प्रिंसिपल वाला अमाउंट में आएगा, दैट इज x, एंड देन वी हैव राइट द फॉर्मूला। आफ्टर दिस इज द इक्वेशन फॉर्म। जब ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है तब ये रिड्यूस करने से आपका यहाँ पे जब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 729x by 625. 729x by 625. Now we will do cross multiply. We will bring x to the one side. जैसे x है तो x को LHS में ले आएंगे और x को as it is रहने देंगे। फिर जो हमारा अमाउंट का डेटा था दैट इज 4,55,625 वो लिखे। उसको लिखने के बाद ये 625 यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसीलिए ये दूसरे साइड जाकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा। सो वी हैव रिटन इनटू 625। अब हम लोग इसको डिवाइड बाय 729 करेंगे क्योंकि वहाँ पर
सी यहाँ पर 729 आपका न्यूमरेटर में था, इसीलिए वो अदर साइड जाकर के आपका डिनोमिनेटर में हो गया। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 390625, और ये जो आपका आंसर है यही आपका पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इन 2013 होगा, दैट इज 3,90,625। हमने पढ़ा था प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब इसी में इसी फॉर्मूला से हम लोग का डेप्रिसिएशन का भी प्रॉब्लम बनता है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? इफ द वैल्यू ऑफ समथिंग डिक्रीजेस ईयर बाय ईयर, तो वो जो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने लिए फ़ोन खरीदे हैं, ठीक है, फ़ोन खरीदे हैं तो आप उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते उसका जो वैल्यू होता है वो कम होते जाता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम उसको बेचते हैं, व्हेन यू रीसेल इट, जब कोई सेकेंड हैंड में खरीदता है या आप उसको बेचते हो तो वो पैसा आधा दाम हो जाता है। सपोज आप 10,000 में लिए हो तो वो 5,000 हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसका वैल्यू घट रहा होता है। इसीलिए डेप्रिसिएशन का मतलब होता है द वैल्यू दैट डेप्रिशिएट्स, दैट रिड्यूसेस डे बाय डे आफ्टर यूजिंग द थिंग, then it is called depreciation. Similarly, we will solve a question on this. Question आपका क्या बोल रहा है कि a machine that is bought for ₹1,80,400, उसका वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है 10% पर एनम में, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू आफ्टर 2 years। मशीन यूज करने वाला चीज है, यूज करते करते वो बीच में खराब भी होगा, उसका वैल्यू घटते जाएगा, तो इन फ्यूचर में उसका वैल्यू घटेगा। इसीलिए क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है दैट यू हैव टू फाइंड आउट कि इसका वैल्यू कितना घटेगा। क्योंकि ये घटने वाला है तो हमारा फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होगा जैसे वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years। प्रिंसिपल के जगह आपका 1,80,400 आएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस 10/100, क्योंकि हम लोग का वैल्यू घट के आएगा। अमाउंट प्रिंसिपल से जब अमाउंट निकलता था तो वो बढ़ के आता था, लेकिन डेप्रिसिएशन में हम लोग का वैल्यू घटता है। डेप्रिशिएट का मतलब ही रिड्यूसिंग होता है, तो क्योंकि ये घटता है इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करेंगे, और ये 2 years बोला है तो यहाँ पे हमारा पावर भी 2 आएगा। फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारा यहाँ पे 90/100 आएगा, और 90/100 2 बार लिखाएगा। इट विल बी written 2 times because in the power there is given 2. What we will do is we will reduce. After reducing, first we will cancel the zeros. अब हम लोग 1,804 into 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 146124। We will put rupees sign. If you will forget to put rupees sign, your marks will get deducted during the examination. So आपको यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका डेप्रिसिएशन का सम हो गया। इसी बेसिस पे आपका जो सेकेंड एक्सरसाइज है बुक में, उसका आपका सारा चीज़ सॉल्व होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको देता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इफ द रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आपको पहले देता है कंपाउंडेड एनुअली। एनुअल का मतलब होता है पूरा 1 साल, इसीलिए आप लोग पूरा 1 साल का लेते थे। अब हाफ ईयरली का मतलब हाफ ईयर मतलब आधा, 1 साल का आधा, दैट इज 6 months। तो जब आपका हाफ ईयरली होगा तो आपका डेटा में थोड़ा चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा? आपका प्रिंसिपल जो है वो एज इट इज रहेगा, नो चेंज। जो रेट होता है अगर आपको रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा, if in question it will be saying that 10% per annum half yearly, compounded half yearly, then what we do, we will divide this by 2 and that will be 5%। तो हम लोग जो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में r की जगह हम लोग 5 लिखेंगे। सिमिलरली टाइम भी यहाँ पे चेंज
इंटू 2 हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका 2 इयर्स है तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाता है। तो ये जो 4 होता है आपका, ये आपका पावर में जाएगा। इस चीज को आप अपने ध्यान में रख लीजिए कि जब भी आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोलेगा, देन जो रेट होता है वो डिवाइड बाय 2 होता है और जो टाइम होता है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। अपने दिमाग में फिर से हम आपको रिपीट करके बोलते हैं कि रेट जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, टाइम जो होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है जब भी हम लोग कंपाउंडेड हाफ ईयरली करेंगे। नाउ कम टू कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टर का क्या होता है मतलब? क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो जब आपको कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, रेट विल गेट डिवाइडेड बाय 4। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर यहाँ पे 8% पर एनम दिया हुआ है तो जो आपका 8% है वो 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, दैट विल बी 2%। तो आप जो फॉर्मूला में जब वैल्यू डालोगे तो r की जगह आपका 2% लिखाएगा। और सिमिलरली 10 जो होता है, जो t को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो जो n होता है वो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाता है। वही जगह यहाँ जब हाफ ईयरली करते हैं तो जो हमारा n होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तब हम लोग रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, जब और टाइम होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम चीज जब क्वार्टरली होता है तो हम लोग r को, जो रेट होता है हमारा, उसको 4 से डिवाइड करते हैं और जो t होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी बेसिस पे जैसे आपका सम बनता है, बस आपको जब भी हाफ ईयरली या क्वार्टरली दिया रहेगा तो आप केयरफुली अपना रेट और टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए। फिर वैसे ही जैसे हम लोग आगे फॉर्मूला डालते आए हैं वैसे ही फॉर्मूला डालते रहेंगे। इज दैट क्लियर? अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है इससे रिलेटेड, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो।